Dear students, Assalamu alaikum to all of you in 12th botany. Dear students, we were discussing population interaction, and in this interaction, we have discussed about predation, competition, etc. Our today's topic is parasitism. So, before this, we have discussed predation. But in case of predation, I have told you that one species gets benefit. It means that positive sign, and one species gets harm to that extent that it ends its life. But in case of parasitism, we have to see what type of interaction it is. So we can say it is such type of interaction in which one species gets benefit. इसमें क्या होता है, एक जो स्पीशीज होती है प्रीडेशन में एक स्पीशीज को बेनिफिट मिलता है और दूसरा ये था दूसरा प्रे की सूरत में सामने आ जाता था। लेकिन पैरासाइटिज्म की हालत में ऐसी बात नहीं होती है। पैरासाइटिज्म की बात ऐसे होती है, ऐसा इंटरेक्शन है कि इसमें एक स्पीशीज को बेनिफिट मिलता है लेकिन दूसरा फिर सर्वाइव भी करता है, उसको अगर हार्म भी पहुंचता है लेकिन सर्वाइव करता भी है। सो वी कैन से वन स्पीशीज गेट्स बेनिफिट, इट गेट्स पॉजिटिव साइन एंड other species gets harm. So this benefit is represented by positive sign and harm is represented by negative sign. For example, we when we talk in case of ticks, such as ticks which are ticks are present on the surface of dogs, or we can quote the example of lice which remains, which I have told you already, and which remains in the head of humans. बेसिकली क्या होता है, जो पैरासाइट होते हैं ये होस्ट के सरफेस पे होते हैं, लेकिन या तो ये होस्ट के सरफेस पे होते हैं, आइदर दे रिमेन सरफेस ऑफ द होस्ट और दे रिमेन इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। सो जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स टू टाइप, इसके दो टाइप्स होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज इंडोपैरासाइट, एक इंडोपैरासाइट होता है। फॉर एग्जांपल टैप वर्म, जो इनसाइड द बॉडी दीज रिमेन इन लिवर, किडनी एट्सट्रा। और राउंड वर्म, these also is endoparasite, it remains inside the body, so it is endoparasite, or we can say endoparasites remain also in our species. So these endoparasites जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन होस्ट से हासिल करते हैं। So there is another type of parasites which is ectoparasites. ये जो ectoparasites होते हैं ये on the surface of the organism होते हैं। These are such parasites which remain on the surface of the organism. So I have told you that we can quote the example of ticks on the surface of dogs. So when we case of plants, जब हम plants की बात करते हैं, we can take the example of cascata. So we know that जो cascata होता है it is a plant parasite. ये भी एक plant parasite है और ये एक plant उसको बोलते हैं hedge plant, उसी पे होता है। क्योंकि जो cascata होता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और न उसके पास लीव्स होते हैं, क्योंकि during the course of evolution it has lost its leaves and chlorophyll. So इसमें क्या होता है, जब उसके पास लीव्स भी नहीं होती है, जब उसके पास क्लोरोफिल भी नहीं होता है, सो इसमें ये चांसेस नहीं होते हैं कि उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाए। लेकिन वो करता क्या है, इट क्लाइम्स ऑन हेज प्लांट ड्यू टू विच इट परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये क्या करता है, ये चढ़ता है इस हेज प्लांट में, जिसकी वजह से इसकी फोटोसिंथेसिस भी होती है और अपने न्यूट्रिएंट से उसी से लेता है, जिसकी वजह से हेज प्लांट उसका होस्ट बनता है।
So when cascata has no chlorophyll, we know or we can say it has no leaves, so it performs the process of photosynthesis, and no food formation takes place in case of cascata itself, but due to its nutrients which this has taken from hedge plant, it survives. So is the reason why they climb on hedge plant. So hedge plant is his host. So there are some parasites जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ऐसे प्लांट जो होस्ट स्पेसिफिक, इसका मतलब यह है कि दैट इज दे क्लाइम ऑन सम होस्ट बॉडी एज इन सच वे दे टेक देयर न्यूट्रिशन। सो जो ये हैज प्लांट होता है, अगर होस्ट में किसी वक्त कोई एवोल्यूशन हो आ जाता है, इफ द होस्ट will undergo any evolution, the parasites adopt that condition, or the parasites have to adopt that condition. Let us know about the changes which parasites have adopted due to evolution in the host. ऐसे ही अगर किसी होस्ट में तब्दीली आ जाती है तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो इस कंडीशन को अपने लिए एडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सम स्पेसिफिक चेंजेस जो पैरासाइट्स में होती हैं, फॉर एग्जांपल इन लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि जब लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें होती है ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब उनकी वेट लॉस भी होती है, तो इसलिए इनका वेट भी कम होता है। तो इससे इनको क्या मतलब बेनिफिट मिलता है कि ड्यू टू लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेट लॉस टेक्स प्लेस, ड्यू टू विच parasites connect easily to their body of the host, so they get nutrients in this way. और दूसरी एडॉप्टेशन क्या है इसमें कि लॉस ऑफ अननेसेसरी एंटीना, इट मीन्स दैट कि जो गैर ज़रूरी ऑर्गन्स उनके होते हैं, दे लूज अननेसेसरी ऑर्गन्स, वो अपने जो एज़ा इनके गैर ज़रूरी होते हैं उनको लूज करते हैं। और तीसरा ये होता है कि उनकी कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं, वो उनको पता है कि उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है वो हाई होती है, सो दे हैव डेवलप्ड, वो मतलब वो डेवलप करते हैं कुछ सैकिंग या एडहेसिव ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक इन दिस केस वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लिवर फ्लूक। इन केस ऑफ लिवर फ्लूक दे नीड 2 hosts, for example snail and fish, to complete their life cycle. And another is when we talk in case of female anopheles or anopheles mosquito, we consider it as parasite, but actually it is not a parasite, it is a vector. So what is a vector? Vector means it carries a parasite from organism to another, one organism to another. It means that it helps in spreading. Actually parasite which is responsible for causing malaria is plasmodium. So infectious stage of plasmodium इस जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस स्टेज है उसको बोलते हैं स्पोरोजाइट। सो व्हेन दीज गेट एंटर इन आवर बॉडी देन वी गेट मलेरिया, व्हेन स्पोरोजॉइड गेट एंटर इन आवर बॉडी देन देयर इज, तो हम इसीलिए मलेरिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी टर्म है उसको बोलते हैं ब्रूड पैरासाइटिज्म। लेकिन ये ब्रूड पैरासाइटिज्म क्या है, उसमें होता क्या है, उसमें एक बात ये है कि जब ये ऐसा प्रोसेस है कि इसमें एक जो मतलब एक ऑर्गेनिज्म वो केयर करता है ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एग्स, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे के एग्स का केयर करता है। वो इन दिस वे कि अगर हम कुकू की बात करें, अगर हम कोयल की बात करें, लेकिन कुकू इज़ नॉट मेकिंग हिज ओन नेस्ट। कुकू जो होता है वो अपना नेस्ट खुद नहीं बनाता है, ही लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रो, वो अपने अंडे कौवे के इस घोंसले में डालता है।
तो द साइज ऑफ द एग्स ऑफ द कोको एंड कलर, जो इसके कोको के अंडे का साइज होता है, उसका कलर होता है, फिर वो रिजेंबल करता है क्रो के एग्स के साथ। इसलिए क्रो लेज इट्स एग्स इन इट्स ओन नेस्ट, कि कौवा अपने नेस्ट में जब अंडे डालता है तो उसका उनको एक दूसरे के साथ मैच करता है कलर। तो इस इन दिस वे दे डोंट डिफरेंशिएट देयर एग्स, so the size and eggs of the cuckoo resemble to the eggs of the crow. So in this case, crow does not differentiate the eggs of cuckoo because due to the evolution, the size and color of the cuckoo's egg resembles that of the crow's egg, and so in this way, crow cures the cuckoo's eggs. Also, this is an example of brood parasitism. अब हमने इसमें क्या देखा, but there is a difference which I have already told you at start, that there is something difference between parasitism and predation. In case of parasitism, in case of predation, I have told you that one species gets benefit, or we can say one species gets benefit and another gets harm to that extent that it becomes the relationship of predation and prey. Then in case of parasitism, uh, that these one get benefit and other gets harm, but he gets harm, another gets harm, but it still survives. So there is something difference between parasitism and predation. अब हमने क्या देखा कि पैरासाइटिज्म और प्रीडेशन में यही फ़र्क है कि जब प्रीडेशन की बात करते हैं उसमें एक स्पीशीज को फ़ायदा मिलता है तो दूसरा एक प्रे की तरह बनता है, दूसरी स्पीशीज जो होती है उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो पैरासाइटिज्म में ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशीज बेनिफिट पाती है और दूसरे को नुकसान पहुंचता है, लेकिन नुकसान इस हद तक नहीं पहुंचता है कि वो ख़त्म हो जाए, वो अभी सरवाइव करता है। और अब हमने ये भी देखा कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो सरफेस होस्ट के सरफेस पे है होते हैं। इसके दो किस्में होते हैं, इंडो पैरासाइट भी होते हैं जैसे टैप वर्म, राउंड वर्म एट्सट्रा, जो किडनी, लिवर या ऑर्बिसीज में होते हैं। और हमने ये देखा कि इंडो पैरासाइट्स भी होते हैं जैसे कि टिक्स ऑन सरफेस ऑफ डॉग्स और लाइस ऑन ह्यूमन हेड। तो प्लांट्स के बारे में जब हमने कैस्केटा की बात की है कि कैस्केटा जो है ये एक पैरासाइट प्लांट है, ये अपना न्यूट्रिशन हेज प्लांट से हासिल करता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल और लीव्स नहीं है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन it climbs on hedge, and this cascada climbs on hedge plant, due to which it performs the process of photosynthesis and takes their nutrients from it. So when cascada, सीधी सी बात है कि जब कैस्केटा के पास क्लोरोफिल नहीं है, उसके पास लीव्स भी नहीं है, तो ये इसकी फोटोसिंथेसिस कैसे हो जाती है, इसकी फोटोसिंथेसिस कैस्केटा की मदद से हो जाती है कि ये अपने न्यूट्रिएंट्स उसी से ले जाता है। तो फिर हमने ये समझा कि आधे पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। इट मीन्स दैट कि दीज क्लाइंब ऑन सम होस्ट बॉडी एज इन सच वे दे टेक देयर न्यूट्रिशन। ये होस्ट तभी सर्वाइव करेंगे जब ये किसी होस्ट पे चढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इन दिस केस, अगर किसी होस्ट में कुछ तब्दीली या कोई एवोल्यूशन की वजह से कोई चेंज आती है तो ये पैरासाइट्स क्या करते हैं, ये अपने आप को उस एडॉप्शन के लिए, उस एवोल्यूशन के लिए एडॉप्ट करते हैं। तो उस एडॉप्शन में हमने देखा कि अब अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस हो जाता है तो ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी उनका वेट भी कम हो जाता है। तो उनको पैरासाइट्स को ये मतलब आसानी हो जाती है कि जब उनकी वेट लॉस हुई तो ये इसलिए अडॉप्ट करते हैं कि ये कलिंग होते हैं अपने होस्ट के साथ, जिसकी वजह से ये सर्वाइव करते हैं और अपना न्यूट्रिशन उसी से लेते आते हैं। उसके बाद हमने देखा
कि जो अननेसेसरी ऑर्गन्स उनमें होते हैं वो इसको लूज करते हैं। और तीसरा हमने ये देखा कि जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है, इसलिए वो सकिंग या एडहेसिव ऑर्गन्स उनमें होती है। फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ लिवर फ्लूक, जिसमें 2 होस्ट्स की ज़रूर स्नेल एंड फिश की ज़रूरत होती है उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। उसके बाद हमने देन वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं, बट एक्चुअली ये पैरासाइट होती ही नहीं है, ये वेक्टर होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पर पैरासाइट को पहुंचाते हैं, जो इसमें इसकी स्प्रेडिंग में मदद करते हैं। एक्चुअली पैरासाइट जो होते हैं इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग मलेरिया, लेकिन जो मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो इन्फेक्शियस स्टेज इसका होता है उसको बोलते हैं स्पोरोजाइड। So when these get entry in our body, in this way we get malaria. उसके बाद हमने देखा कि ब्रूड पैरासाइटिज्म, ये हमने देखा कि यह ऐसा प्रोसेस है जैसा कि in which one species cures for the eggs of the other organism। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के अंडों का केयर करता है। फ़र्ज़ करो हमने कोयल की मिसाल ली, हमें कोयल की पता है कि ये अपना नेस्ट नहीं बनाता है, ये अपना नेस्ट क्रो के इस नेस्ट में डालता है, अपने एग्स क्रो के नेस्ट में डालता है। तो इन दिस वे द साइज ऑफ द एग्स ऑफ द cuckoo एंड कलर इज resembles the crow's egg. Then crow lays its eggs in its own nest. The size and eggs of the cuckoo resemble with the eggs of the crow. So these eggs does not differentiate the eggs, because due to the evolution the size and color of the cuckoo's egg resembles so that of crow's egg. So in this way crow cares the cuckoo's eggs also, which is an example of brood parasitism. So it was all about parasitism. Thank you so much.